औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर आर्किटेक्चर IAP 888। आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 14 registers CS, DS, SS and ES. These are all register SP, BP, स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर, या डिफरेंट है, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये सब रजिस्टर्स हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। These are 14 registers for the 8088 आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और अब इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है जर्नल registers AX, BX, CX and DX. The registration AX, BX, CX and DX behave is general purpose register in Intel architecture and do some specific function in addition to it. X is their name, stand for the extended meaning 16-bit register. X is for 16-bit register, and for example AX mean we are referring to the extended 16-bit A register. So extended A register for AX is 16-bit A register. Its upper and lower byte are separately accessible as AH, which is the A high byte, and AL, A low byte. All general purpose register can be accessed as one 16-bit register. So all the general purpose register can be accessed as one 16-bit register as two 8-bit registers. So L for the low byte and L for the low byte and H for the high byte. The two registers H and L are a part of the big whole X. Any change in the H and L is reflected in X as well. So A high byte and A low byte combinedly make the AX register. So all register all general purpose register can be accessed as one 16-bit or two 8-bit registers. So AH is the high byte and AL is the low byte. The two registers AH and AL are a part of a big whole X. So combinedly these two registers, if it's of A, this one, so these two are the combinedly these are the AX register. Any change are the part of big whole X. Any change in the AL and AH is reflected in AX as well. अब इसमें और इसमें जो चेंज आएगा, तो जो कंबाइंडली दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जो इन दोनों के कम्बिनेशन से जो रजिस्टर बनता है, तो वो दोनों उसमें क्वालिटीज़ दोनों में सेम होंगी, ठीक है। अब ये एक रजिस्टर आया है और ये एक रजिस्टर है, अब दोनों जब मिलेंगे, ठीक है, तो दोनों में ये क्वालिटीज़ होंगी, सही है। तो अब AX इज़ कंपोजिट आर extended register formed by the gluing together the two parts of AL and H. अब दोनों पार्ट्स ग्लू मतलब उसको जॉइंट करना, इनको मिलाना, ठीक है, तो दोनों की जो है क्वालिटीज़ इसमें आ जाएगी। द A of AX स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर, A फॉर एक्यूमुलेटर, एंड हाई बाइट एंड लो बाइट, ठीक है, एक हाई है, हाई प्रायोरिटी पे, एक लो है, बट क्वालिटीज़ दोनों आएंगी, ठीक है, बिकॉज दोनों के कम्बिनेशन से बना है। इवन all general purpose register can be act as a accumulator in the most instruction. There are some specific variation which can only work on the AX, which is why it is named as the accumulator. The B of BX stand for the base because of its role in the memory addressing as discussed in the next chapter. इसको डिस्कस करेंगे। Then the C and CX stand for the counter, as there are certain instruction that work with the automatic counting. अब ये जो है A रजिस्टर है, B है, C है, D है, दोनों ये चारों की अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं, बट ये दोनों जो बने हैं दो स्मॉलर जो है, दोनों लो बाइट और हाई बाइट जो दो के कम्बिनेशन से, दोनों के मिलने से बने हैं, ठीक है, तो एक नई चीज़ बनी है, एक नया जो है, सही है। सो द CX
The C of CX stand for the counter, as there are certain instructions that work with an automatic count in the CX. So DX stand for the destination. Destination जो असल target है, ठीक है, target register है. This is it act as a destination in IO operation. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जो इनपुट ऑपरेशन हो रहा है या आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है. सो द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में एंड द ABCD इन लेटर्स sequence as well as depict some special functionality of the registers. So A, X, B, C, D are the letters sequence as well as the depict some special functionality. अब ये A, B, C, D सारे जो है ये कोई ख़ास फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे. A की अपनी फंक्शनैलिटी है, B की अपनी है, C की अपनी है और D की अपनी है, ठीक है. मगर जब हम इसको करेंगे AL और H है तो दोनों कंबाइंडली क्या बनाएंगे, ये AX बनाएंगे. अब ये जो हमारे पास है यहाँ पे इसको देखें. अब ये AH और AL जो है कंबाइंडली ये बना रहा है, ये दोनों जो है ये बना रहा है, ये दोनों ये बना रहे हैं और ये दोनों ये बना रहे हैं. अब हर एक की अपनी क्वालिटी है. A की अपनी क्वालिटी है, ठीक है, B की अपनी क्वालिटी है, ठीक है, और इस तरह A की अपनी है, B की अपनी, C की अपनी, D की अपनी. स्टैंडर्ड जो है दोनों के कम्बिनेशन से बना है. जो क्वालिटीज़ इन दोनों में होंगी वही क्वालिटी जो है इसमें होगी. इनमें जो क्वालिटीज़ इन दोनों में होगी ये इसमें भी होगी, ये दोनों क्वालिटीज़ जो इसमें होगी ये भी इसमें होंगी. अब इसमें हाई बाइट और लो बाइट, अब लो और हाई बाइट, मगर दीज आर द 8 बिट रजिस्टर्स, ठीक है. अब ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है और ये भी. एंड दिस इज द 16 बिट रजिस्टर्स, ठीक है. दीज आर द 16 बिट रजिस्टर्स. सो द कम्बिनेशन ऑफ दीज AL and H form the AX, and BH and BL form BX, and CH and CL form CX, and DH and DL form DX. सो यहाँ पे जो है अभी हर एक की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, तो अपनी फंक्शनैलिटी के मुताबिक वो काम करेंगे कि हमने कब अब रजिस्टर्स हम यूज़ क्यों करते हैं. इन असेंबली प्रोग्राम वी हैव टू इन असेंबली प्रोग्राम हमने क्या जो है डायरेक्ट जो है मेमोरी में हम डेटा को नहीं सेव रखते. जिस तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं ना, हम डायरेक्ट मेमोरी में रखते हैं अपने पास डेटा, ठीक है. तो एरे है या पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं, या हम उसके लिए कंपाइलर जो है हम कोई जो है वो हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं. सो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ स्पेस. अगर इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, वी हैव टू this compiler will automatically allocate the space according to the requirement. So यहाँ पे जो है अब करना क्या है, यहाँ पे जो है अब असेंबली में तो डायरेक्ट मेमोरी को नहीं एक्सेस करते. सो मेमोरी एक्सेस नहीं हो रही, बल्कि डायरेक्टली ये जो है हम रजिस्टर्स के थ्रू सारा काम करते हैं. हम असेंबली प्रोग्राम जब आपको कराऊंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है. सो अब ये जो है जितनी भी अब हर एक रजिस्टर का अपना काम है. AX कहाँ यूज़ हो रहा है, BX कहाँ यूज़ हो रहा है, CX और DX. अब AX, BX, CX और DX की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, बट क्या है कि इसकी क्वालिटीज़ तो अपनी है, बट इसके लिहाज से जो है हर एक की अपनी जो फंक्शनैलिटी है ना, ठीक है, हर एक के लिहाज से जो अपनी फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करेगा. बट क्या होगा, फंक्शनैलिटी जिसकी होगी, मगर उसमें यह है कि ये कंबाइंडली जो दो इसके स्मॉलर रजिस्टर से बने हैं तो वही, मगर AX, BX, DX और CX जो है हर एक की फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट है अपने लिहाज से. अब हमने AX कब यूज़ करना है, किस तरह के वैल्यूज़ को सेव करने के लिए, BX कहाँ पे, CX, वो तो हम आगे जब प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें, असेंबली प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें डिस्कस हो रही होती है. सही है. सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को रजिस्टर जनरल रजिस्टर और रजिस्टर आर्किटेक्चर की समझ आ गई होगी.